My name is Dr. Sahil Momin. I am the head of strategy and projects for Startup Nation India. We are doing this because we are launching a competition, a large scale startup competition, hopefully the biggest and the largest competition in the world, focus specifically for startups from schools and universities. So most of these startup founders would be at an ideation stage or at a very early stage, and first-time founders. The idea Okay. of having this call and this conversation is to basically allow these students and faculty members an insight into the life of a founder and how problem solving in that ecosystem works, right? There are majorly three things we'll be focusing on. One is your individual journey from where you were born, which school you went to, which college you went to, what was that like. We'll keep it short, about like in five minutes or so, and Okay. then we're going to talk about your startup. What is your startup, what it does, when it was started, pretty much an intro to that, maybe about 4 5 minutes, and then we'll dive deep into the issues that your startup has faced since its inception, including previous or like past projects or previous any state that you've done, the problems that you faced, how you solved them. The idea is pretty much the to identify founders who have failed the most and have finally made it out there somewhat, right? Okay. Got Because early stage founders mostly believe that they'll get early success. They will be the next, I don't know, the next Zepto or the next Instamart or something like that, and that's where the misconception lies. So, we're going to start with you. Please tell me a bit about you, where you were born, your school, your college, and why did you choose to become a founder? My name is Naman Gandhi. I'm CEO and founder of Techcan Automotive Private Limited. So I born and brought up in Bhadagad, Haryana. So Bhadagad is a tier 2 city in Haryana, close to the border to Delhi itself. So my schooling was done through BSM Senior Secondary School. So I done my bachelor's and master's from UPES, University of Petroleum Science and Energy Studies, from 2018 to 2024. So basically मैं पास आउट सिर्फ 2 साल पहले ही हुआ अपनी मास्टर्स का ग्रेजुएट करके, राइट? तो जहाँ पर अगर मैं अपनी जर्नी की बात करता हूँ कि व्हाई आई चूज एंटरप्रेन्योरशिप एज अ जर्नी, सो पहला मेरा ये फोकस नहीं था. आई वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट व्हेन आई वाज अ चाइल्ड. Why so? Because we look into the space program in the Discovery Channel or Net Geographic Channel. I really fascinate about the universe, how it's work, how energy works. But there's a one other perspective in me that because I came from the middle class family, so I want to become rich. And who doesn't? Everyone wants to become a bit rich. And रिच बनने के लिए क्या करना है? हमें एक ही चीज पता था, या तो बड़ी जॉब लेके आप अच्छी एमएनसी कंपनी में सीईओ एंड अच्छी ऐसी पोस्ट लीजिए, नहीं तो आप बिजनेस अपना स्टार्ट कीजिए. When I visit to the college in my first year, मेरी आंखें खुल गई. So every professor I looking into, they all are scientists. Technically, they all are scientists. They all have their PhDs, but uh, they are not living that kind of a life. उनकी सैलरी भी अच्छी है. They are earning very good, but अगर मैंने उनकी कार देखी थी एंड मेरी मदर की कार, जिनका एक खुद का सैलून है एंड नॉट अ फैंसी जॉब एंड फैंसी बिजनेस, नॉर्मल सैलून, उनके पास में 2 कार्स है एंड दोनों ही अच्छी ब्रांड्स की है, कंपेयर टू द पीएचडी ऑनर्स, द साइंटिस्ट. तो मुझे रियलाइज हुआ कि अमीरियत सिर्फ जॉब से नहीं आ सकती है अगर आपको करना है. तब मैंने इसकी तरफ जाने का सोचा कि मैं बिजनेस लाइन को करूंगा. पहले मेरा गोल था बिकम अ साइंटिस्ट, देन बिकम अ एंटरप्रेन्योर, वेल एस्टेब्लिश्ड. देन मेरी आंखें खुल गई कि व्हाई नॉट दिस टाइम, अभी क्यों नहीं. फिर दूसरी एक और चीज जो मेरे को हिट करी थी, दैट मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर एंड द साइंटिस्ट इन आवर कंट्री, उन्होंने एक ऐसा मटेरियल बनाया था जो कि अगर ग्लास पे आप कोटिंग करते हैं तो आपकी जो हीटिंग है पूरी बिल्डिंग की वो बहुत रिड्यूस हो जाएगी.
कितना ज्यादा मॉनिटरी इफेक्ट हो सकता था अगर बड़ी बिल्डिंग्स को ये दिया जाए, स्काई स्क्रेपर्स को दिया जाए, वहां पे उनकी कितनी बिजली बचाई जा सकती थी, राइट? बट वो पेज तक ही रह गई। तो मुझे लगता है कि अगर आप कुछ भी रिसर्च करते हैं या कुछ भी, तो उसको मोनेटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा सफर यहाँ से चालू हुआ एंड आई एम इनटू द एनर्जी सेक्टर, क्योंकि मुझे एनर्जी से बहुत प्यार था, वही बचपन का प्यार की बिग बैंग, सोलर सिस्टम एक्सेट्रा। तो इस वजह से मैं एनर्जी सेक्टर में घुसा तब। लेकिन उससे पहले क्योंकि मुझे इतना बिजनेस का आइडिया नहीं था, तो मैंने पहला अपना वेंचर स्टार्ट किया था, नॉट इन डीप स्टैक स्टार्टअप बट अ नॉर्मल, आई वाज अ फ्रीलांसर। मैंने अपने बैचलर्स के, हर कोई सीखता है कि लोगो डिजाइनिंग सीख लेते हैं, वीडियो एडिटिंग सीख लेते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लेते हैं, क्रैक वर्जन से हमने डाउनलोड किए एंड वहां से सीखा। फिर उसके बाद में मैंने धीरे धीरे क्लाइंट्स बनाना चालू किए। तब उस टाइम पे मुझे बिजनेस का पता नहीं था, बिजनेस रन कैसे करते हैं, बट इवेंचुअली मुझे पता लगा कि मैं एक्चुअली एक बिजनेस ही रन करना चालू कर दिया। कैसे? क्योंकि मेरे पास ऑर्डर ज्यादा आने लग गए थे, मेरा एक डिमांड हो गई थी, मेरा नाम बन गया था अब वर्क पे। एंड उस टाइम पे freelancing.com ऐसे कई सारी वेबसाइट तब क्या कर रहे थे उस टाइम? तब क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे? व्हाट सर्विस वर यू प्रोवाइड? सो लोगो डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग एक्सेट्रा दिस टाइम। या उस टाइम पे तो मैं अकेला था। जब ऑर्डर्स ज्यादा आने लगे, मैंने क्या किया कि दूसरे लोगों को वो सेल आउट करना चालू कर दिया कि आप उसको दो, मैं बीच में। तो काइंड ऑफ ड्रॉप शिपिंग का आइडिया था एंड ये 2018 की बात है। मुझे नहीं पता था क्या इसको बोला जाता है, क्या टर्म है। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैं इससे काम करवा लेता हूँ, थोड़ा बहुत पैसा मैं कमा लूंगा यहाँ से। एंड मैं बड़ा ऑर्डर लेता था उनसे, इंडियन से थोड़ा सा कम में काम करवाता था, आगे उनको सप्लाई कर देता था, जो कि नॉर्मल प्रैक्टिस थी। तो धीरे 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 मेरे को समझ में आने लगा। फिर मैंने एक टीम बनाई जिसके साथ में हम ये बिल का काम करने लगे। बट वहां पे मैंने एक प्रॉब्लम फेस करी जो बहुत बड़ी थी, कि उस टाइम पे डिजिटल डिमांड 2018-2019 तक की डिजिटल डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा डाउन जाने लग गई थी। क्योंकि दूसरे जो बड़े प्रोफेशनल्स है, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट था, मेरे को ज्यादा खाली टाइम होता नहीं था, जिस वजह से मेरी स्टडीज भी इफेक्ट हो रही थी। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर आप एक यूनिवर्सिटी में आते हो तो आपका पहला गोल आपकी स्टडी कंप्लीट करना होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वर्कलोड इतना था एंड मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था अपनी स्टडीज को एंड अपने बिजनेस को। तो वहां पर एंड फिर मैं इवेंचुअली मैं मनी को लूज करने लग गया था, क्योंकि रिमोटली मैं जितने भी लोगों से काम करवाता था वो ढंग से टाइम पे काम नहीं करते थे, मेरे रिव्यूज डाउन होना चालू हो गए थे, जिस वजह से मुझे वो बिजनेस छोड़ना पड़ा। एंड क्योंकि ये रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं था तो मेरे को इतने प्रॉब्लम नहीं हुई करने के लिए। बट यस, मेरे को एक चीज समझ में आई कि कब और किस तरीके से टीम को मैनेज करें, किस तरीके से अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को, जो आज बहुत ट्रेंड में है, मैंने अपने बैचलर्स के फर्स्ट ईयर में सीखा था, किस तरीके से हम अपने वर्क लाइफ बैलेंस को बैलेंस कर सकते हैं, अपनी स्टडीज को भी बैलेंस कर सकते हैं। फिर उसके बाद में 2019 में मेरा दोबारा एक मन किया कि क्यों ना अब क्योंकि छुट्टियों का टाइम था, मैं अपने हॉस्टल में था, तो मैंने लगा कि एक नया स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहिए। क्या करे क्या किए, उस टाइम पे बहुत ज्यादा स्टार्टअप का बूम भी आ रखा था, अच्छी खासी नॉलेज गेन हो रही थी मेरे को यूट्यूब से, अदर स्टफ से। फिर वहां पे मेरे को एक चीज समझ में आई कि क्यों ना एनर्जी सेक्टर में जो मेरा प्यार है उसी में करते हैं। तो एनर्जी से सबसे रिलेटेड क्या था? बैटरी पैक्स। उस टाइम पे ईवीज मार्केट में नहीं थी। ईवीज जब मैंने नींव रखी थी आइडिएशन स्टेज के ऊपर, पहला व्हाइट बोर्ड पे मैंने लिखा था कि आई एम गोइंग टू बिकम एन ईवी कंपनी, उसके 2 दिन के बाद में एथर एनर्जी लॉन्च करता अपना स्कूटर। तब मेरे को रियलाइज होता कि ओ, ऐसा स्कूटर जो मैं सपना देख रहा था। उससे पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था इस फील्ड के बारे में। मैंने स्टार्ट किया था कि चलो एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक साइकिल बनाते हैं। फिर बोला नहीं यार, इलेक्ट्रिक साइकिल से हटके इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाते हैं, इलेक्ट्रिक बाइक बनाते हैं। तब मुझे समझ में आया कि नहीं, इस मार्केट में पोटेंशियल है। तो 2019 की बात है, फिर मैंने अपने प्रोफेसर के पास में गया, क्योंकि मुझे बिजनेस का आइडिया नहीं है, मुझे नहीं पता ईवी बनाते कैसे हैं। प्रोफेसर के पास गया, बट वहां से मुझको बिजनेस नॉलेज नहीं मिल रही थी और ना मेरे को एक प्रोमिनेंट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज मिल रही थी। देन मुझको नहीं पता था हमारे कॉलेज के अंदर, हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक इंक्यूबेटर होता है। उस टाइम पे हमारा इंक्यूबेटर स्टार्ट ही हुआ था, 1 साल पहले स्टार्ट हुआ था, तो उसका कुछ इतना क्रेज नहीं था। एंड उस इंक्यूबेटर का नाम है रनवे इंक्यूबेटर। आजकल वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया क्योंकि उसके पास में काफी अच्छे फंड्स आ रहे हैं। तो उस टाइम पे मैं रनवे इंक्यूबेटर का वन ऑफ द फर्स्ट कोहॉर्ट्स में से हम एक थे। तब मैंने उनके साथ में ज्वाइन किया, मैंने उनसे समझा कि बिजनेस कैसे बनाया जाता है, पिच डेक कैसे बनती है,
फिर उसके बाद में एक तरीके से बिजनेस मॉडल कैनवस कैसे बनाया जाए, मेरे कस्टमर्स को कैसे टारगेट करूं, कैसे आइडेंटिफाई करूं कौन से मेरे कस्टमर्स हैं, वहां पे मैंने उनकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग करी। फिर उस सेगमेंट में और उस इकोसिस्टम में सबसे बेस्ट जो मुझे था वो था उसका इकोसिस्टम खुद। जब एक स्टार्टअप ओनर और कई सारे एंटरप्रेन्योर्स एक साथ बैठते हैं तो आपकी नॉलेज जो है वो एक पर्टिकुलर फील्ड तक ही सीमित नहीं रह जाती है, इट इट्स गो बियॉन्ड दैट। आपको हर एक फील्ड का, हर एक मार्केट सेगमेंट का नॉलेज मिलना स्टार्ट हो जाता है। एंड उनकी जर्नी से देख के आप खुद मोटिवेट होते हैं, यार इतना मेहनत कर रहे हैं, हमें भी अपने आप को खुश करना चाहिए। रात रात भर बैठ के हम काम करते थे, ये सब करते थे। तो मेरी जर्नी ओवरऑल यहाँ से स्टार्ट हुई है। एंड मैं अपनी कंपनी के बारे में बता देता हूँ राइट नाउ। सो बेसिकली एट टेक्योन ऑटोमोटिव वी बिल्ड, डिजाइन, मैन्युफैक्चर हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स and their core techniques I'm and sorry, their I core couldn't hear your video lag. What was the name of the company name? Techion Automotive. Yeah. So at Techion Automotive, we build, design, manufacture high performance electric two wheelers and their core technology like battery pack, motor controller, etc. तो आइडिएशन स्टेज की हम बात करते हैं कि जब मैं आइडिएशन स्टेज पे था, हम बहुत अलग अलग तरीके से कभी कुछ नई टेक्नोलॉजी बिल्ड करते हैं या फिर कोई नया डिजाइन बिल्ड करते हैं। बट जो मेजर जो मेरे को फील हुआ मार्केट में लैग था वो था बैटरी पैक, राइट? क्योंकि बैटरी पैक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एनी काइंड ऑफ ईवी। तो उस टाइम पे हमें समझ में आया कि हमें बैटरी पैक तो अपनी खुद की बनानी पड़ेगी, बट क्या उसके अंदर इस तरीके से हम इनोवेशन ला सकते हैं। तब मैं पड़ गया पीछे, और जो कि मेरी बेवकूफी थी कि मैं सेल केमिस्ट्री के पीछे पड़ गया, क्यों ना मैं सेल केमिस्ट्री से ही स्टार्ट करता हूँ। बट इवेंचुअली मैंने सेल केमिस्ट्री बना भी, लिथियम टंगस्टन ट्राइऑक्साइड सेल्स, मैं उसमें सक्सेसफुल भी हो गया। बट उस सक्सेसफुल के पीछे मैं एक तो अपने मकसद से भटक गया। जो मुझे बनाना था मैंने कुछ और प्रोडक्ट बना दिया, उसका यूज केस अलग है, एंड उसको इवेंचुअली उसको स्केल अप करने के लिए फंड्स भी अलग चाहिए, अलग टाइप के फंड चाहिए। और मैं कंफ्यूज हो गया था कि ईवी में ही जाऊं या केमिस्ट्री में जाऊं, समझ में नहीं आ रहा। फिर मैंने काफी सारे मेंटर से बात करी, रनवे के सीईओ थे उनसे बात करी, तब उन्होंने समझाया मेरे को कि इवेंचुअली आप अगर इसमें जाओगे B2B सेक्टर है, आप इसमें जाओगे B2C सेक्टर है, इसमें पैसा बहुत लगेगा, इसमें भी पैसा लगेगा, बट आप एक तरीके से स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे आ जाता है मटेरियल साइंस। तो इसको स्टॉप कर दो, पॉज कर दो। तो मैंने क्यों ना सोचा कि क्यों ना 5 साल के बाद इसको ही अपनी कंपनी में इंट्रोड्यूस कर दूं, बाद में जब मेरे पास अच्छा स्केल अप हो, पैसा हो। तब उस टाइम पे फिर मैं सेल केमिस्ट्री पे ही गया कि जो नॉर्मल मार्केट में सेल केमिस्ट्री है, बट उनको किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। सो उसको बेहतर करते करते हमने पहले अपना बैटरी पैक बनाया, तो वो काफी अच्छे से काम करेगा, काफी अच्छे से उसकी परफॉर्मेंस आ रही थी। बट हमने एक और चीज नोटिस करी, उस टाइम पे ओला मार्केट में था, एंड 2 साल पहले की बात है। ओला के अंदर काफी सारी चीजें प्रॉब्लम फेस करने पड़ रही थी, आग लग रही थी, एंड कस्टमर्स भी बहुत ज्यादा दुखी थे। तो मुझको रियलाइज हुआ कि the customer really don't care what kind of a technology an OEM use in their vehicle, what kind of a battery pack I am using my vehicle, right? They all care about what kind is the claim that I am claiming them, is it true or not? अगर मैं उनको क्लेम करता हूं कि आपकी व्हीकल 300 किलोमीटर चलेगी एट द रेट ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, क्या वो चल रही है कि नहीं? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी काइंड ऑफ अ व्हीकल बिजनेस, आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है कि नहीं है? तब उस टाइम पे हमने सोचा कि इनोवेशन करते हैं, बैटरी पैक को इस तरीके से बनाते हैं कि इसको रिपेयर करना बहुत आसान हो जाए। देन वी बिल्ड दिस हेक्सागोनल बैटरी टोपोलॉजी। सो ये आप एक हेक्सागोनल मॉड्यूल देख रहे हैं अपने आप में। सो ये मॉड्यूल अपने आप में एक बैटरी पैक है। हर एक बैटरी पैक को आप स्टैक करके अपने डिमांड से, अपने जो आपकी नीड है, परफॉर्मेंस की नीड है, आप उसको स्टैक करते करते वो अपने पसंदीदा बैटरी पैक बना सकते हैं। एंड सबसे बढ़िया चीज है, अगर कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मेरा व्हीकल है, आप बोलते हैं कि मेरे व्हीकल में ये प्रॉब्लम आ गई है, बैटरी काम नहीं कर रही है, आप मेरे पास आएंगे, मैं बोलूंगा ठीक है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप 2 महीने वेट कीजिए बाकी कंपनीज की तरह, मैं आपको ये बोलूंगा आप सिर्फ 2 घंटा वेट कीजिए। हम आइडेंटिफाई करेंगे, हमारा बीएमएस हमें बता देता है, बीएमएस मतलब बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, कि बैटरी पैक में कौन से मॉड्यूल में खराबी है, मुझे सिर्फ इस मॉड्यूल को ऐसे करके निकालना है, दूसरा मॉड्यूल फिट करना है, और आपकी बैटरी पहले जैसी है, योर व्हीकल इज गुड टू गो। तो हमने इस चीज पे ज्यादा फोकस किया कि इसको रिपेयरेबल कैसा बनाया जा सके। एंड इस चक्कर के अंदर कि हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा बन गया, तो कुछ ओईएम्स के साथ में हमने स्टार्टिंग में पायलट्स भी रन किए,
देन रिसेंट में हमारा जो मेन हमें लगता है कि पायलट रन होने जा रहा है वो DRDO के साथ में होगा, तो हम सिमिलर काइंड ऑफ बैटरी पैक्स उनके लिए डेवलप करेंगे, राइट। तो एंड वो भी -40 डिग्री सेल्सियस में सियाचिन के अंदर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे कंपनी के लिए भी एंड हमारी टेक्नोलॉजी के लिए भी। तो ये था मेरा ब्रीफ मेरे बारे में, मेरी कंपनी के बारे में, मेरी छोटी सी जर्नी के बारे में। Thank you so much. Thank you so much. First of all, a wonderful journey. You've Yeah. rightfully identified the pain points of the target audience that you're looking for, identified a niche that where you can work in, and at the same time created a USP for your product which others were lacking, right? A replaceable cell instead of a replaceable battery makes a lot more sense from a scientific perspective, environmental perspective, and an individual perspective also. Why should I pay for the entire battery? मुझे बस cell बदलनी है. So I come to Yes. you, you change the cell, भाई cell बदल दे, battery रहने दे, right? Yes. So honestly, a very good product that you've created and a really interesting journey. I have a few questions on this though, right? When you started off, right, first thing you had to do was build yourself a very basic prototype. Now, from what I understand, you have some background in science and psychology, but you're not an expert on battery tech or cell tech or something. You studied it, you understood it enough that you can, go out there and, find people as well who are better at like technology side. Engineer है या scientist है या जो भी है, we need to identify those things, right? So how did you first identify your very first initial core team? Then how did you build that prototype? How much did it cost? And how did you get that fund to build that very basic prototype or basic MVP के होगा मैं खाली जाके लोगों को दिखा पाऊँ कि भाई ये बनाया मैंने, right? So those three things. सो अगर मैं कोर टीम की बात करते हैं स्टार्टिंग से, आइडिएशन स्टेज के बाद में, क्योंकि मैं अकेला ही था, मैंने रिसर्च कर रहा था, देन आई रियलाइज कि मुझे एक CTO की जरूरत है। उस टाइम पे मैंने टर्म सीख लिए थे, CEO, CTO, CMO। तब मुझे लगा था टेक्निकल एक बंदे की जरूरत है, क्योंकि मैं फिजिक्स बैकग्राउंड का हूँ, मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स आती है, मैं बचपन से करता आया हूँ, मॉडल्स बनाए, बट मैं उतना प्रोफिशिएंट नहीं हूँ। मैं साइंस में अच्छा हूँ, मैं बिजनेस में अच्छा हूँ, बट टेक्निकल पार्ट में मुझे इतना नॉलेज नहीं है। उस टाइम पे मैंने क्या किया कि मैं जगह जगह अपने, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में था, तो सबसे बेनिफिट मिलता है यूनिवर्सिटी में अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपको बुफे मिलता है, हर एक फील्ड का बंदा आपको वहां पे मिलेगा, आपको जाके चुनना है। बट हाँ, उसमें भी अपना एक हैसल होता है, क्योंकि आप ऐसा जाके नहीं बोल सकते हो कि हे मुझे एक स्टार्टअप करना है, या क्योंकि अर्ली डेज में अगर आप ऐसा लेके जाते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपने इनिशियल डे में जब मैं पहले अपना को फाउंडर ढूंढ रहा था, तो वो एक डिजाइन का बंदा था, क्योंकि एक व्हीकल डिजाइन करने के लिए क्या चाहिए, एक व्हीकल बनाने के लिए एक डिजाइनर चाहिए, राइट। तो मुझे डिजाइनिंग आती है, बट मैं अपना टाइम वहां पे वेस्ट नहीं करना चाहता था, तो मैं सोचा कि चलो उनके पास जाते हैं। उनका स्टार्टिंग पॉइंट ये था कि मुझको पीपीटी दिखाओ, लाइक दे आर VCs और एंजल इन्वेस्टर, कि मुझे पीपीटी दिखाओ, और वो जबकि सेम ईयर का स्टूडेंट है मेरा। एंड उनका ये था कि, और मेरा ये था कि मैं एक प्रेजेंटेशन तुम्हें बना के दिखा देता हूँ, ठीक है, बट जो कन्विक्शन होना चाहिए वो नहीं था। अगर कोई, मैं बाकी ऑडियंस को भी बोलूंगा और स्टूडेंट्स को भी बोलूंगा अगर ये समझ रहे हैं, अगर सामने वाला, एक होता है कि उनमें चमक दिख जाती है कि मुझे अपना खुद का कुछ करना है, राइट, तो वो इतना सवाल जवाब नहीं करते हैं, क्योंकि आपके पास खोने को कुछ भी नहीं है उस टाइम के ऊपर, आपके पैसे नहीं लग रहे, कुछ भी नहीं लग रहा। तो अगर उस टाइम पे कोई ज्यादा सवाल जवाब कर रहा है, इसका मतलब है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड, आप उनसे दूरी बनाइए। फिर उसके बाद में, क्योंकि मुझे CTO चाहिए था, मैं इलेक्ट्रॉनिकल डिपार्टमेंट में गया, मैं बच्चों को ढूंढने लगा, नहीं इंटरेस्टेड थे। फिर मेरे को एक आइडिया आया, क्यों ना प्रोफेसर के पास में जाया जाए। सबको प्रोफेसर को पता होता है कौन सा स्टूडेंट अच्छा है कौन सा नहीं है। एंड मैं प्रोफेसर के पास में गया, दो, पहला जो कि लैब संभालते हैं, दूसरा जो कि एकेडमिक संभालते हैं। जो लैब संभालते थे और एकेडमिक संभालते थे, मैंने उनसे जाके पूछा कि आपका सबसे खराब स्टूडेंट कौन है, उसको आना चाहिए। अगर वो एकेडमिक्स में घुसा रहेगा, फिर से वही रोल ऑन की मेरे असाइनमेंट्स हैं, ये है वो है, तो मुझे एक मेरे जैसा बंदा चाहिए था जो एकेडमिक से ज्यादा इन सब चीजों के अंदर हो। तो फिर मैं अपने फिर उस जो लैब का प्रोफेसर था उनके पास में गया, उन्होंने मेरे को दो नंबर बताए बच्चों के, उनसे मैंने बात करी, उनमें से एक मेरा पहला को फाउंडर बना। फिर उसके बाद में कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से रिसेंटली उसको कंपनी से लीव लेना पड़ गया था, क्योंकि फैमिली कंडीशन सबकी होती है, एंड वो भी ग्रेजुएट हो चुका था, एंड हम काफी आगे तक आ चुके थे, बट
अभी हम उतना अर्न नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि प्रोटोटाइप बनाने के लिए जो गवर्नमेंट से ग्रांट हमें मिलता है वो इतना इनफ नहीं होता है कि हम प्रोटोटाइप भी बना ले, अपनी सैलरीज भी निकाल लें। तो ये अपने आप में एक हसल वाली जिंदगी है, हसल वाली लाइफ है, जर्नी है। तो उस टाइम पे हमने बट रिसेंट में हमारा एक नया को फाउंडर भी है जो ज्वाइन किया है। शी इज अ गर्ल, काजल गोस्वामी, हर नेम इज काजल गोस्वामी, एंड शी इज परस्यूइंग PhD फ्रॉम IIT मंडी राइट नाउ। तो हमारा फील्ड में टेक्निकली तो सब था ही। अब बात आती है आपके कि फर्स्ट प्रोटोटाइप और MVP का सफर कैसे आया था। उस टाइम पे नई नई स्कीम्स मार्केट के अंदर गवर्नमेंट की और स्टार्टअप इंडिया की तरफ से बहुत सारी आ गई थी। तो हमने पहले साल में निधि प्रयास के लिए बहुत बार अप्लाई किया। 2022 के अंदर हमने निधि प्रयास के लिए अप्लाई किया, क्योंकि निधि प्रयास मिलने के लिए सिर्फ आपके पास में मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपको 2 साल पुराना ही स्टार्टअप होना चाहिए। अगर आप उससे 1 साल भी ऊपर जाते हैं, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द निधि प्रयास ग्रांट। तो पहला साल हमें नहीं मिला 2022 के अंदर। फिर उसके बाद में 2023 में हमने दोबारा ट्राई किया, हमने अपने बेसिक्स अच्छे करे, हमने अपना बिजनेस मॉडल अच्छा किया। देन हमने जो रिसेंट में JSS स्टेप से हमने निधि प्रयास ग्रांट रेज किया था 9.8 लाख। फिर सिमिलरली 3 से 4 महीने के बाद में हमने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड जो है वो निधि JSS स्टेप से ही दोबारा रेज किया। तब उस टाइम पे मैंने एक सीखा कि ग्रांट रेज करने के लिए सबसे प्रोमिनेंट जो तरीका है वो ये है कि आप एक इंक्यूबेटर के साथ में पहले 3 मंथ्स में काम कीजिए, जिनके पास में ये फंड्स अवेलेबल हैं उनको अपनी प्रोग्रेस दिखाइए। फिर उसके बाद में वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि आपके अंदर पैसा लगाने के लिए। एंड जिस टाइम पे मुझको पहले एक भी ग्रांट नहीं मिला था किसी इंस्टीट्यूट से, उस टाइम पे मेरे को 3 यूनिवर्सिटी से 3 इंक्यूबेटर से ग्रांट मिल गए थे। JSS स्टेप, IIT मंडी एंड IIT मंडी रुड़की टाइट्स, यहाँ से मेरे को पैसा मिल रहा था। एंड देन आई चूज JSS स्टेप ओवर देम, क्योंकि पैसा भी ज्यादा दे रहे थे एंड दूसरी चीजें भी थी, हम उसके अंदर हम गए। एंड फिर प्रोटोटाइप बनाने में अपने हसल्स तो होते ही हैं। तो फिलहाल ये जर्नी थी प्रोटोटाइप और MVP तक की। तो यहाँ तक क्योंकि मैं अपने सेकंड ईयर के अंदर, क्योंकि मुझे उस फील्ड में काम करना था, तो मैंने एक इंटर्नशिप कर ली थी एक कंपनी में जाके। एंड वो कंपनी थी फेम। तो बेसिकली वो इलेक्ट्रिक बाइक बनाना सिखा रहे थे प्रॉपर कि कैसे बनाते हैं, और वो हैदराबाद में था। तो मैंने अपने बैग पैक किए, मैं हैदराबाद में रजिस्टर किया, मैं गया वहां पे। एंड वो पेड था, मुझे पैसे देने थे उनसे, मैंने उनको पैसे दिए, उन्होंने मेरे को सिखाया। तो वहां पे मुझे स्ट्रक्चर बनाने आ गए थे। मुझे जो बेसिक काम है वेल्डिंग करना, कटिंग करना, मशीन को कैसे हैंडल किया जाता है, मैंने वो काम सीख लिया था। क्योंकि एज अ फाउंडर आपको सब कुछ सीखना पड़ता है। आपके पास में टेक्निकल नॉलेज भी होना बहुत कंपलसरी है, आपके पास में बिजनेस नॉलेज भी होना बहुत कंपलसरी है, फिर उसके बाद में मार्केटिंग। तो आप एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड होते हैं एंड आपको वो सीखना कंपलसरी होता है। तो मेरे पास कोई चारा नहीं था, मैं वहां पे गया तो मैंने वहां से सीखा। फिर उसके बाद में यहाँ पर आके मैंने, क्योंकि यहाँ पे मशीन्स थी एंड आई वाज फेमिलियर विद दोस काइंड ऑफ मशीन, हाउ टू यूज देम। तो फिर वहां से मैंने अपने प्रोटोटाइपिंग की जर्नी स्टार्ट करी। आउटसोर्सिंग मैंने बहुत बाद में आके करी, जब मेरे पास में पैसा आ गया था। एंड क्योंकि मेरे पास टाइम कम था अब उन सबको, क्योंकि अगर मैं सब कुछ ही इन हाउस करने जाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। तो हमने डिसाइड किया हम एक कोर पे काम करते हैं। हमने एक टीम डेवलप करी, मार्केटिंग के लिए एक पर्टिकुलर टीम डेवलप करी, उनको हम स्टाइपेंड देते थे। बहुत कम स्टाइपेंड होता है, 1000 रुपए 1500 रुपए, बट क्योंकि स्टूडेंट्स को सीखने का बहुत रुचि होती है। एंड हमने भी सिर्फ उन्हीं को लिया जो कि एकेडमिक से हटके इन सब चीजों में ज्यादा एक्टिव थे। हमने उनको सिखाया, सब कुछ किया। तो सिमिलरली हमने ऐसे टीम बांट ली थी। एंड जो हमारा मेन काम था, हमने सोचा कि जो हमारा मेन है वो है बैटरी पैक एंड कोर टेक्नोलॉजी, उस पर फोकस करते हैं। चैसी हमारे लिए कोई और भी बना सकता है। तो फर्स्ट प्रोटोटाइप हमने यहाँ पे बनाया, पर जब MVP के लिए हम गए तो हमने आउटसोर्सिंग करी, ताकि जो प्रोफिशिएंसी एंड जो एफिशिएंसी हमें वहां पे मिलती है एंड जो एक्यूरेसी हमें वहां पे मिलती है वो हम अचीव नहीं कर पा रहे थे हमारे हैंड से। हाँ, तो पिच तो मैं एक्चुअली नंबर सोच भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैंने जितने भी एप्लीकेशंस लिंक्डइन पे या कहीं पे भी आते थे, मैं बस आंख बंद करता था और भरने लग जाता था। हर जगह मैं भर चुका था। तो अप्रोक्स मुझे लगता है मैं 200 इंक्यूबेटर से ऊपर मैं पिच भर चुका हूँ ग्रांट मनी रेज करने के लिए। बट बाद में मुझे एक चीज समझ में आई कि मुझे सब पे नहीं जाना है, मुझे उन चुनिंदा पे जाना है जो कि उनका जो सेक्टर है वो मेरे सेक्टर से अलाइन करे। तो क्योंकि JSS स्टेप एंड IIT रुड़की
IIT मंडी कैटलिस्ट, ये सब ग्रीन एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी, AI, इन सब पे थे, तब वहां पे एक बहुत ज्यादा मेरे को पुश मिल गया एंड एक अपर लेवल मिल गया कि चलो यहाँ से हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आती है कि आप बहुत सारे आपको करना पड़ेगा और अर्ली स्टेज रिजेक्शन भी बहुत, क्योंकि आपको ना एक्चुअली में पता नहीं होता है आपको फंड यूटिलाइज कैसे करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है फंड यूटिलाइज करना, क्योंकि हमें अभी लग रहा है कि जैसे जब मैं फर्स्ट ईयर में था मुझे लगता था कि यार 1 लाख रुपए बहुत होगा। आज के टाइम पे मुझे लगता है 1 लाख रुपए कुछ भी नहीं है, अगर हाथ में आता है, सामने वेंडर बैठा होता है, उसको 1 लाख रुपए देने होते हैं, राइट। तो पैसा अगर संभाला नहीं जाए तो 10 लाख भी कुछ नहीं होते, आप उड़ा देंगे। अगर आपके पास नॉलेज है पैसे को मनी मैनेज करने का, ग्रांट को कैसे मैनेज करना है, प्रोटोटाइपिंग के अंदर किस तरीके से लगाना है, तो वहां पे वो बहुत एसेंशियल होता है अपना मनी मैनेजमेंट स्किल। अगर आप वो करते हैं तब जाके आप अपने प्रोडक्ट को अचीव कर पाएंगे। अगर मैं अपने बिजनेस मॉडल की बात करूं तो हमारे 2 बिजनेस मॉडल में आता है। एक आता है B2C सेक्टर, जहां पे हम अपनी EV मार्केट के अंदर लॉन्च करने वाले हैं 2026 के अंदर। उससे पहले क्योंकि अभी इस सेक्टर के अंदर हमें फंड्स जो है, जो VC और एंजल्स के फंड है, वो बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि EV मार्केट जो स्टैग्नेंट हो गई है। एंड हम इतनी आगे आ चुके हैं, हमें पता है कि मार्केट स्टैग्नेंट नहीं हुई है, इसके अंदर अभी और भी पोटेंशियल है। क्योंकि अभी कितने कंपनी, 4-5 ही तो कंपनी है। अगर हम 4-5 कंपनी को मान लेते हैं कि वो स्टैग्नेंट मार्केट कर देता है, तो कि हमारी सोच में फिर फर्क है। तो इस वजह से उसको हम थोड़ा सा पॉज किया है, और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमने जो बैटरी पैक्स बनाई थी उसका एक मिलता जुलता मॉडल बनाया, ताकि जो मेन कोर है वो हमारी टेक्नोलॉजी हमारे व्हीकल के लिए लगे, एंड सिमिलर काइंड ऑफ, बट उससे थोड़ा सा लेस जो परफॉर्मेंस देता है वो हमने थर्ड व्हीलर OEMs को दिया, उन OEMs को जो कि 3 व्हीलर OEMs के अंदर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने पहला मार्केट के अंदर अपना पहला पायलट रन किया था वो 2023 में था, जहां पे हमने सोलर पावर प्लांट्स के लिए बैटरी पैक लगाए थे। तो मुझे लगा था कि चलो यहाँ से थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट करते हैं, बट नहीं, मेरा लॉस हो गया, जेब से देने पड़ गए थे वहां पे। एंड फिर उसके बाद में ग्रांट मिलता है, हमने प्रोटोटाइपिंग एनर्जी, हम पूरी सब काम करते हैं। अब मेरे यहाँ पे बहादुरगढ़ के अंदर एक पूरा का पूरा सेगमेंट बना हुआ है, EV सेक्टर यहाँ पे बन चुका है। तो 3 व्हीलर OEMs यहाँ पे बहुत सारे हैं। मैं उनके पास में गया एंड मैंने उनको पिच किया कि आप अभी मार्केट के अंदर, उससे पहले मैंने रिक्शाओं वालों से पूछा कि आप अपनी फेस क्या कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आपकी बैटरी पैक में क्या प्रॉब्लम है। वो बोलते हैं कि रेंज कम मिलती है, बैटरी बहुत भारी है, रिप्लेस कराने के लिए जाओ तो बहुत दिक्कत है, कोई IP67 की रेटिंग नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बस आप बैटरी पैक बनाने को मतलब ये समझते हैं कि सीरीज एंड पैरेलल में सेल को कनेक्ट कर दीजिए, बैटरी पैक आपका बन गया। ऐसा नहीं होता, पूरी मैपिंग की जाती है, पूरी टोपोलॉजी क्रिएट की जाती है। तो ये कंपनीज जो थी ये उस तरीके से काम नहीं करती थी। तो मैं इनके पास में गया, मैंने इनको बोला कि हम आपके लिए बैटरी पैक्स बनाएंगे एंड आप हमें अपना ऑर्डर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि हम तुम्हें क्यों दें, क्योंकि उनका पहला ही सवाल था, और जो कि बहुत ही, और मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बोला था कि अगर मान लीजिए सिक्किम के अंदर बैटरी पैक हमारी जाती है, ये पूरा रिक्शा जाता है, वहां पे आपकी बैटरी पैक खराब होती है, आप ठीक कैसे करेंगे उसको। मैं बोला ठीक तो ये हो जाएगा, बट बात में सही है कि पहले मेरे पास भी तो आनी चाहिए ना बैटरी ठीक करने के लिए, मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं कि मैं वहां पे जाऊं, किसी बंदे को भेजूं, यहाँ पे मेरी वहां पे कोई ब्रांच खुली हो। तो वहां पे मैंने एक चीज फेस करी कि हाँ ये प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो फिर मैं सोचा कि क्यों ना आसपास के रीजन में ही किया जाए। तो मैंने एक कंपनी थी विक्ट्री इंटरनेशनल, उसके साथ में टाई अप किया कि हम आपके लिए बैटरी बनाते हैं, पर्टिकुलरली आपके लिए बनाएंगे। उनको पूरा हमने सच बताया कि हमारे पास इतना वो नहीं है, तो आप अपनी बैटरी पैक्स अभी इसी रीजन में, जो नॉर्थ का रीजन है, दिल्ली, गुड़गांव, पंजाब, चंडीगढ़, यहाँ पे कीजिए ताकि रिपेयर करना हमारे लिए आसान हो जाए। अगर कोई भी फॉल्ट आता है तो, वैसे वो फॉल्ट आएगा नहीं, बट अगर आ भी जाए, मशीन है, तो हम बैठे हैं ठीक करने के लिए, एंड डाउन टाइम आपका बहुत कम होगा। फिर हमने कुछ स्टार्टअप्स के पास में गए, क्योंकि जैसे कुछ EV स्टार्टअप्स है, उनको बैटरी पैक्स चाहिए, बट उनको मार्केट रेट में बहुत महंगी मिलती है, जो कि हमें भी फेस करनी पड़ी थी वो चीज। तो हमने उनके साथ में टाइप किया कि क्योंकि अभी मुझे प्रॉफिट्स की तरफ नहीं जाना है, मुझे रेवेन्यू अपना मॉडल परफेक्ट करना है, थोड़ा बहुत पैसा आ जाए, हमारी अपनी सैलरी निकाल सके, तब हमने उनको कॉस्ट कट करके उनके साथ में बैटरी पैक्स की डील कर ली, ताकि हम उनका बैटरी पैक्स भी प्रोवाइड करा सकते हैं उनके हिसाब से। एंड क्योंकि हमारा मॉड्यूलर डिजाइन है, फॉर एग्जांपल ये मॉड्यूल है, तो आप इसको किसी भी लेवल पे आप शेप कर करके आप किसी भी शेप की बैटरी पैक बना सकते हैं। तो उस टाइम पे फिर हम उस तरीके से डील किया। Lovely talking to you. If you're ever in Pune, please do let me know. I'd love to catch up with you. Definitely. And I'll definitely try scheduling that podcast with you for a longer Sure. time. Right? Yeah, sure. Right. Definitely. Thank you so much, Naman. Thanks.